the value of 12C4 plus 12C3 is, अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन की, NCR plus NCR minus 1, this could be combined into N plus 1 CR. तो यहाँ पे देखिए n सेम है और r में 1 का डिफरेंस है, तो उसे हम कंबाइन कर सकते हैं n plus 1 CR. So 12 plus 1, so that becomes 13 CR is 4. अब इसे हम इवेल्युएट करते हैं डायरेक्ट मेथड से. So starting with 13, चार टर्म्स हम लिखेंगे, 13 into 12 into 11 into 10 divided by, नीचे आएगा 4 factorial, that is 4 into 3 into 2 into 1. Now 4 3s is 12, तो ये cancel out हो जाता है. Then 2 1s 2 5s 10. So we have 11 5s 55. 55 into 13. So 55 into 13 is 715. So the correct answer is option A. If NPR is equal to 336 and NCR is equal to 56, then N and R will be. Option method से try out करते हैं. N is 3 and R is 2. So 3P2, अगर ये evaluate करते हैं तो ये आएगा 3 into 2, that is equal to 6, और हमें चाहिए 336. तो option A is not the correct answer. B check करते हैं, 8 and 3. So 8P3. अब 8P3 is obtained as 8 into 7 into 6. Let us multiply 8 into 7 into 6. ये आता है 336. तो ये तो satisfy हो गया. अब NCR चेक करते हैं, 8C3. ना 8C3 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं as 8 into 7 into 6 upon 3 into 2 into 1. Now 3 into 2 होता है 6, cancels with 6. So 8 7s is 56. तो ये भी satisfy हो रहा है. So the correct answer is option B. If 18CR is equal to 18CR plus 2, then RC5 is. Now we know that if NCX is equal to NCY, तो यहाँ से दो possibilities बनती है. एक है इधर x is equal to y और दूसरी x plus y is equal to n. तो अगर हम x equal to y लेते हैं, यानी r equal to r plus 2, तो यहाँ तो r और r cancel out हो जाता है, तो ये possibility तो exist नहीं होती है. So we will go with the second possibility, that is x plus y is equal to n. So r plus 2 is equal to 18. So 2 times r is equal to, ये subtract करते हैं तो 16. So therefore r is equal to 8. अब RC5 की वैल्यू ढूंढते हैं. So therefore RC5 will be equal to 8C5 and 8C5 को हम replace कर सकते हैं by 8C3. And if we calculate 8C3 तो ये आएगा 8 into 7 into 6 और नीचे 3 into 2 into 1. Now 3 into 2 6 cancels with 6. 8 7s होता है 56, which is option C. If NCR minus 1 is equal to 56, NCR is 28 and NCR plus 1 is 8, then R is equal to. अब यहाँ पे combination की ये दो key properties हम use करेंगे. NCR upon NCR minus 1 होता है N minus R plus 1 upon R. अब यहाँ पे हमें NCR की वैल्यू दी है 28. So 28 upon and NCR minus 1 is 56. So this is equal to N minus R plus 1 upon R.
वैसे यहाँ पे НCR+1 दिस इज 8 एंड NCR की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू N माइनस R अपॉन R+1। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, उन्हें सॉल्व करके हम N एंड R की वैल्यू इजीली ढूंढ सकते हैं। So this is 28 ones are 28 twos are, let us cross multiply. So R is equal to 2n minus 2r plus 2. तो यहाँ से इक्वेशन बनता है 2n, ये r इस तरफ गया तो minus 3r is equal to minus 2, इक्वेशन नंबर 1। 4 से रिड्यूस करते हैं, 4 2s are 8, 4 7s are 28, तो ये आ जाएगा 2r plus 2 और ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n minus 7r। सो वी हैव द सेकेंड इक्वेशन एज 7n, 2r इस तरफ लेते हैं, minus 9r इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गया और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें r की वैल्यू पूछी गई है, सो लेट अस एलिमिनेट n को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ 7n है, यहाँ 2n है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। सो 7 2s are, ये हो जाएगा 14n, 7 3s are 21r इज इक्वल टू माइनस 14। इस पूरे इक्वेशन को इंटू 2 करते हैं, सो 14n 9 2s are इज यहाँ पे आएगा 18r, 2 2s आएगा 4। नाउ लेट अस सबट्रैक्ट, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, एन टर्म चला गया, ये आएगा माइनस 3r इज इक्वल टू माइनस 18, ये माइनस साइन भी गया, डिवाइड कर देते हैं, सो r इज इक्वल टू 6। ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। A person has 8 friends. The number of ways in which he may invite one or more of them to dinner is. Now, invitation is an indirect way of selection. तो यहाँ पे combination वाला concept apply होगा. He has to invite one or more. So total selections होंगे 8C1 or from 8 he can select 2 or invite 2 or 8C3 और 8C4 और ये जाएगा अप टू 8C8। अब ये सॉल्व करने के लिए हम कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं एंड दैट इज НC1 plus НC2 up to NCN. This can be evaluated as 2 raised to n minus 1. तो इसका भी हम आंसर इजीली ला सकते हैं, दिस विल बी 2 raised to 8 minus 1। अब 2 raised to 8 होता है 256 minus 1, so that is 255, which is option B. The number of ways in which a person can choose or select one or more of the 4 electrical appliances, TV, refrigerator, washing machine and a cooler is. So 4 में से वो एक सिलेक्ट कर सकता है या फिर 4 में से वो 2 का सिलेक्शन कर सकता है और 4 में से वो 3 का सिलेक्ट कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है, या फिर he can go with all 4, that is 4C4. And here we can apply the formula НC1 plus НC2 up to NCN. This is evaluated as 2 raised to n minus 1. तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे as 2 raised to 4 minus 1, that is 16 minus 1. So the answer is 15, which is option A. If НC10 is equal to НC14, then 25CN is. अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन की ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, if NCX is equal to NCY, then we have two possibilities, X equal to Y or X plus Y equal to N, whichever
वर्क्स वैसे, तो वो वाली यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे हम x इक्वल टू y तो नहीं कर सकते, ये वाला पार्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं है, वरना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 14, सो दिस वोंट वर्क ओवर हियर। तो ये वाला पार्ट हम यूज करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू n, दैट इज 10 प्लस 14 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी एज 24, and now we could obtain 25 Cn, so that will be 25 C24, and this could be replaced by 25 C1. Now 25 C1 hota hai 25, so the correct answer is option B. Out of 7 gents and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. तो हमें यहाँ पे 5 member committee form करनी है. The number of committees that each committee includes at least one lady. इसमें ये जो committees हम बनाएंगे 5 member की, इसमें at least one lady present होनी चाहिए. तो ऐसी कितनी committees बन सकती है? So let's start with gents या लेडीज से स्टार्ट करते हैं. सो सपोज 4 में से हमने एक लेडी को सिलेक्ट किया, तो हमें 7 में से 4 जेंट्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे. सो 4C1 इंटू 7C4. और सपोज 4 में से हम 2 लेडीज का सिलेक्शन करते हैं, तो 7 में से हमें 3 जेंट्स का सिलेक्शन करना होगा. तो टोटल हो गए 5 मेंबर्स. और 4C3, 3 ladies, and from 7 you will select 2 gents. So again 3 and 2 is 5. और एक possibility है 4C4, all 4 ladies. तो 7 gents में से सिर्फ एक gents हम select करेंगे. So these many ways committee form हो सकती है. So let us simplify this. 4C1 होता है 4, 7C4 is same as 7C3, तो ये रहेगा 7 into 6 into 5, नीचे आएगा 3 into 2 into 1, plus 4C2 is 4 into 3 upon 2 into 1, into 7C3 is 7, 6, 5, और नीचे 3, 2, 1. 4C3 is same as 4C1, तो 4C1 होता है 4. 7C2 is 7 into 6 upon 2 into 1. 4C4 is 1. 7C1 is 7. Now let us evaluate this. 3, 2 गया तो 6. Then we have 7 into 5 into 4. 7 into 5 into 4. ये आता है 140. Then 3 into 2 6, और ये 6 गया, 1 जा 2 जा 2 3 जा 6, 6 into 7 into 5, this is 210. ये कैलकुलेट करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 7 2 जा is 14, 14 6 जा 14 into 6, that is 84, and लास्ट में प्लस 7. ये सबको ऐड कर देते हैं हम, 140 plus 210 plus 84 plus 7, तो आंसर आता है 441, which is option C. 28 C2R is to 24 C2R minus 4. ये रेशो दिया है 2 to 5 is to 11. Then the value of R is. So let us try the options. पहले चेक करते हैं R equal to 7. तो ये हो जाएगा 28C. Now 2 into 7 is 14 is to, ये आएगा 24C. 7 2s are 14. 14 minus 4 is 10. And let us check ये रेशो आता है या नहीं. तो NCR का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 28 फैक्टोरियल upon 14 factorial into 14 factorial is to 24 factorial upon 10 factorial into 14 factorial.
ये सिंप्लीफाई करते हैं, सो 28 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल टाइम्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल और नीचे 24 फैक्टोरियल। ये 14 फैक्टोरियल गया, बाकी का सिंप्लीफाई करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल और ये हमारा 10 फैक्टोरियल और नीचे 14 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं। सो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल और ये जो बचा हुआ 24 फैक्टोरियल। 24 फैक्टोरियल गया, 10 फैक्टोरियल भी गया। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। 14 1 जा, 14 2 जा, देन 2 से कट करते हैं, 2 1 जा, 2 6 जा, 3 9 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 13 जा, 13 और 13 भी गया। That's it. So 9 into 25 is 225 और नीचे आ जाता है 11, तो वो मैच हो रहा है गिवन रेशियो के साथ। Yes, so the correct answer is option A, that is R is equal to 7. The number of diagonals in a decagon is, अब decagon में number of sides that is n is equal to 10. So basically ये application है, geometrical application of combination, and we know that number of diagonals of an n-sided polygon is given by НC2 minus n. तो यहाँ पे decagon दिया है तो n की वैल्यू है 10, so number of diagonals will be 10C2 minus 10. तो ये इवेल्युएट करते हैं, 10C2 will be 10 into 9 upon 2 into 1 minus 10. ये कट करते हैं, 9 5 is 45, 45 minus 10 is 35, which is option B. There are 12 points in a plane of which 5 are collinear, then the number of triangles formed is. Now we know that number of triangles obtained by joining n points in a plane of which k points are collinear is given by НC3 minus KC3. तो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू है 12। अब ये 12 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, सो k इज इक्वल टू 5। सो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 12C3 minus 5C3. Now let us evaluate this. 12C3 will be 12 into 11 into 10 divided by 3 into 2 into 1. 5C3 same as 5C2, तो ये हो जाएगा 5 into 4 upon 2 into 1. Now 3 2s are 6, 6 2s are 12, ये 22 into 10 ये हो जाता है 220, 1s are 2s are, तो यहाँ पे आएगा 10. So 220 minus 10, which is 210. So the correct answer is option C. The number of straight lines obtained by joining 6 points in a plane, यहाँ पे in a plane आएगा, so that no 3 of them are on the same line. No 3 points on the same line यानी कि जो points है वो सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, बिकॉज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन होता है 3 और मोर पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। तो बेसिकली हमें 16 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं और उनमें से कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। अब एक लाइन ज्वाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे, तो अगर हमारे पास 16 पॉइंट्स है और अगर हम दो का सिलेक्ट करते जाएंगे तो जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी वो होंगी 16C2. दिस इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू НC2. सो 16C2 को अगर सिंप्लीफाई करते हैं ये आएगा 16 into 15 upon 2 into 1
2 ₁ ₁, 2 8 ये प्रोडक्ट आता है 120, which is option A. At an election, there are 5 candidates and 3 members are to be elected. A voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than the number of candidates to be elected. The number of ways a voter can choose to vote is. अब यहाँ पर 5 कैंडिडेट्स दिए हैं और 3 का सिलेक्शन होना है. हमें दिया गया है वोटर कैन चूज एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बट नॉट ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड. यानी 3 से ज़्यादा का मतलब 3 से ज़्यादा मेंबर्स को वोट नहीं कर सकता, बिकॉज मैक्सिमम 3 मेंबर्स हैव टू बी इलेक्टेड. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे वो होंगे 5 में से कोई भी वो एक सिलेक्ट कर सकता है, या फिर 5 में से 2 का सिलेक्शन कर सकता है, या फिर 5 में से वो 3 का सिलेक्शन कर सकता है. 3 से ज़्यादा का नहीं, बिकॉज 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड. तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी 5, देन 5C2 विल बी 5 into 4 upon 2 into 1, एंड 5C3 इसे भी हम 5C2 की तरह लिख सकते हैं. सो इट इज 5 into 4 upon 2 into 1. सो बेसिकली दिस इज 5 प्लस ये कट करते हैं, सो दैट इज 10. ये भी कैंसिल आउट करते हैं तो ये भी 10 आएगा. सो हमारा फाइनल आंसर आता है 25, विच इज ऑप्शन सी. Every 2 person shakes hands with each other in a party and the total number of handshakes is 66. The number of guests in the party is. Now we know that for one handshake to happen, 2 persons need to be selected. तो जब हम 2 person का selection करेंगे, then that would result in 1 handshake. तो सपोज हमारे पास n लोग हैं. सो अगर हम n पर्सन्स में से 2 का सिलेक्शन करेंगे, सो फ्रॉम n पर्सन्स इफ 2 persons आर सिलेक्टेड, देन नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस होंगे НC2, और ये НC2 सिलेक्शन से हमारे हैंडशेक्स होंगे. सो जितने सिलेक्शंस होंगे दैट इज NC2 उतने ही हमारे हैंडशेक्स होंगे. बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 66. सो देयरफॉर वी कुड से NC2. तो जितनी बार हम 2 लोगों का सिलेक्शन करेंगे उतनी बार हैंडशेक होने वाले हैं, और यहाँ पे हैंडशेक है 66. तो यहाँ से n मिल जाएगा. ये सिंप्लीफाई करते हैं. सो n into n-1 upon 2 is equal to 66. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो n into n-1 is equal to 132. So n into n-1, this could be factorized as 12 into 11. Now if we compare both sides, so by comparison we have n is equal to 12. तो ऑप्शन अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. The number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. अब सपोज हमारे पास हॉरिजॉन्टली ऐसे m parallel lines है and these are intersected by another set of say n parallel lines. Then we have a formula. The number of parallelograms that can be formed will be MC2, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमें 2 लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, एंड NC2, एंड वर्टिकल सेट में से 2 लाइंस का सिलेक्शन होगा. तो यहाँ पे जो m है वो हम 4 ले सकते हैं और n को 3 ले सकते हैं. So this will be 4C2 into 3C2. Let us evaluate this. 4 into 3
नीचे 2 into 1, ये आएगा 3 into 2 upon 2 into 1, 2 1s 2 2s, ये हो जाता है 6 into, ये कट करते हैं तो into 3, 6 3s is 18, which is option B. The number of ways in which 12 students can be equally divided into 3 groups. Equally divided into 3 groups यानी हर एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स जाएंगे. So ये 3 ग्रुप्स हैं हमारे, इनमें 4 स्टूडेंट्स हमें डालने हैं. अब पहले हमारे पास है 12 स्टूडेंट्स, तो 12 में से हम 4 सेलेक्ट करके इस ग्रुप में डाल देंगे. फिर रह जाएंगे 8 में से 4 का सिलेक्शन होगा, फिर सेकंड ग्रुप में डाल देंगे. अब रह जाएंगे 4, वो चारों का सिलेक्शन करके हम थर्ड ग्रुप में डाल देंगे. सो टोटल सिलेक्शंस होंगे 12C4 इंटू 8C4 इंटू 4C4. लेकिन यहाँ पे ग्रुप का लेबलिंग डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये 4 स्टूडेंट इस ग्रुप में गए, ये 4 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे, लेकिन ग्रुप का नंबरिंग डिफाइंड नहीं है या यूनिक नहीं है. सो एनी ऑफ देम कैन बी कॉल्ड एज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 3. सो बिकॉज ऑफ दैट वी डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. अब 12C4 अगर इवेल्युएट करेंगे तो ये आता है 495. 8C4 if we calculate, this is 70. 4C4 होता है 1 divided by 3 factorial is 6. Now let us evaluate this. 495 into 70 divided by 6, ये आंसर आता है 5775, which is option A. The number of ways in which 15 mangoes are equally divided amongst 3 students. तो suppose we have 3 students, say A, B, C. अभी इनकी आइडेंटिटीज तो डिस्टिंक्ट है. अब 15 मैंगोज को इक्वली डिवाइड करना है, यानी तीनों को हमें 5-5 मैंगोज देने हैं. तो पहले 15 में से हम 5 सपोज A को दे देते हैं. सो वी कैन सिलेक्ट 5 मैंगोज इन 15C5 ways. अब इसमें से रह गए 10 मैंगोज, तो 10 में से 5 सेलेक्ट करके हम B को देंगे, और जो रह गए 5 मैंगोज वो जाएंगे C को. सो दैट इज 5C5. सो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हम इतने वेज में कंप्लीट कर सकते हैं. अब यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन में आंसर दिया है, सो वी कैन सिंप्लीफाई दैट. दिस इज 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 1 2 3 4, ये 5 टर्म हो गए, डिवाइडेड बाय 5 4 3 2 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू ये आएगा हमारा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय 5 4 3 2 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू दिस इज 5 4 3 2 and 1, divided by नीचे भी 5 4 3 2 1, that is 5 factorial. So if you observe, numerator is a product from 15 से लेके 1 तक, तो actually numerator में आ गया 15 factorial और नीचे 5 factorial into 5 factorial into 5 factorial, so that is 5 factorial cube. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. 8 points are marked on the circumference of a circle. The number of chords obtained by joining these in pairs is. So we have a circle और इसपे 8 points mark किए गए, 2 3 4 5 6 7 8. Now we know that to draw a chord we need to select 2 points. तो 2 point का selection होगा तो एक कॉर्ड बनेगा. तो जितनी बार हम 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन करेंगे उतने कॉर्ड्स हम बनाते जाएंगे. सो दैट विल रिजल्ट इन द नंबर ऑफ कॉर्ड्स. सो वी कुड से दैट द नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल बी, सो सपोज देयर आर n पॉइंट्स, तो अगर n में से हम 2 का सिलेक्शन करेंगे तो न्C2 सिलेक्शन होंगे और इतने ही कॉर्ड्स हमारे बनेंगे.
So n is 8 in this case. So 8C2 selections will result in the number of chords formed. So 8C2 will be 8 into 7 upon 2 into 1. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 7s is 28. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C. A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. So 8 ladies and 7 gents है और इसमें से जो हमें कमिटी फॉर्म करनी है उसमें होनी चाहिए 3 ladies and 4 gents. So 3 ladies can be selected in 8C3 ways and 4 gents हम सिलेक्ट कर सकते हैं in 7C4 ways. तो इतने ways में हम कमिटी फॉर्म कर सकते हैं. These are all possible ways of forming this committee. आगे दिया गया है Mrs. X refuses to serve in a committee which has Mr. Y as a member. Then the number of such committees is. अब अगर मिसेस एक्स अगर कमिटी में है तो मिस्टर वाई नहीं रहेंगे एंड वाइस वर्सा, और अगर वाई कमिटी में है तो मिसेस एक्स काम नहीं करेंगी उनके साथ. तो पहले हम वो ढूंढते हैं जिसमें एक्स एंड वाई दोनों हो सकते हैं. लेट अस फाइंड द कमिटीज इन विच एक्स एंड वाई आर टुगेदर, यानी ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं. तो अब 3 लेडीज में से एक्स तो ऑलरेडी है कमिटी में, X is already there. तो बाकी हमें सिलेक्ट करनी है 2 लेडीज. ये 2 लेडीज का सिलेक्शन हम साथ में से करेंगे बिकॉज इसमें मिसेस एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो मिसेस एक्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे रह जाएंगी 7 लेडीज. तो ये जो 2 लेडीज है उनका सिलेक्शन हम करेंगे 7C2 वेज में. अब जेंट्स में मिस्टर वाई होने चाहिए तो हमें 4 जेंट्स सिलेक्ट करने हैं. उसमें से एक तो वाई हो गया, यानी 7 में से ये एक जो मेंबर है वाई वो तो फिक्स्ड है. अब रह गए 6 मेंबर्स और वो 6 मेंबर्स में से हम बाकी के 3 मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे. सो दैट विल बी इन 6C3 ways. So these are all the possibilities of forming the committees and these are the ways in which X and Y are together. तो अगर हम इन दोनों को subtract करेंगे we will get our required answer, the number of committees in which X and Y are never together. So 8C3 calculate करते हैं. 8 into 7 into 6 and ये आएगा 3 into 2 into 1 into 7C4 is same as 7C3 तो 7 into 6 into 5 और नीचे आएगा 3 into 2 into 1 minus 7 into 6 upon 2 into 1 into 6 into 5 into 4 और नीचे 3 into 2 into 1. Let us evaluate this. अब 3 2s are 6, ये 6 गया, 3 into 2 is 6, ये भी 6 गया. So 7 8s is 56, 56 into 35 ये आता है 1960. 2 1s are 2 3s are 3 2s are 6 और ये 6 गया. 7 3s is 21, 21 into 20 ये आता है 420 and let us subtract 1960 less 420 ये आता है 1540 which is option D. तो सबसे पहले हमने वो सिलेक्शंस ढूंढे जिसमें कोई भी कंडीशन ना हो. सिंपल 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स का सिलेक्शन हमने ढूंढ लिया. फिर वो सिलेक्शंस हमने ढूंढे जिसमें एक्स एंड वाई आर टुगेदर. तो अगर एक्स ऑलरेडी है कमिटी में तो उस बाकी के 2 लेडीज हम सिलेक्ट करेंगे रिमेनिंग 7 लेडीज में से. तो वो हो जाएगा 7C2 वेज. और अगर वाई होना ही चाहिए कमिटी में तो बाकी के 3 जेंट्स हम सिलेक्ट करेंगे रिमेनिंग 6 जेंट्स में से. So that will be in 6C3 ways. तो ये विदाउट एनी कंडीशन वाले सिलेक्शंस हैं और यहाँ पे हमने वो सिलेक्शंस ढूंढे जिसमें एक्स एंड वाई साथ में है. तो इनका जो डिफरेंस होगा that will be the number of selections in which x and y are never together. So the answer is 1540 which is option D. 500
ⁿC₁₀ is equal to 499 ⁿC₁₀ plus ⁿC₁₁, then n is. अब combination की we know the property НCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. तो अगर ये question देखें हम, this is exactly of this format. देखिए this is NCR, ये 499 C92, then again n. तो अगर यहाँ पे हम 499 लेते हैं, r minus 1, 92 minus 1, so that is 91, और ये combine होके हो जाता है 500 C92, right? So if we compare these two, यहाँ से हमें मिल जाता है n is equal to 499, which is option D. The Supreme Court has given a 6-3 decision upholding a lower court. The number of ways it can give a majority decision reversing the lower court is. तो अगर हम lower court की बात करें, यहाँ पे 6-3 से डिसीजन अपहोल्ड किया गया है, यानी पास किया गया है. अब यही केस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में. सो दिस गोज इन द सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ का जो भी रिजल्ट है इसे हमें रिवर्स करना है. दिस डिसीजन हैज टू बी रिवर्स्ड. नाउ अज्यूमिंग कि यहाँ पे 6-3 दैट इज 9 जजेस है, तो यहाँ पे भी हम अज्यूम करेंगे कि देयर आर 9 जजेस. अब ये डिसीजन जो होगा, ओरिजिनल डिसीजन है, उसे अगर हमें रिवर्स करना है तो मोर देन 50% जजेस शुड अग्री. अब मोर देन 50%, 9 का 50% होता है 4.5. अब 4.5 जजेस तो नहीं हो सकते, सो बेसिकली 5 और मोर जजेस अगर चाहे तो इस डिसीजन को रिवर्स कर सकते हैं. सो डिसीजन कैन बी रिवर्स्ड इन 9C5, मतलब 5 जजेस अगर ओके हैं तो, या फिर 9 में से 6 जजेस अग्री करें टू रिवर्स, या फिर 9 में से 7 ने अग्री किया टू रिवर्स, और 9C8 और 9C9. तो कम से कम 50% जजेस अग्री करने चाहिए टू रिवर्स दिस डिसीजन. सो 9 का 50% होता है 4.5, बट वी कैन नॉट हैव 4.5 जजेस, बेसिकली मोर देन 4. तो मोर देन 4 हो सकता है 5 एंड अबाव. सो दीज आर द वेज इन विच इट कैन बी reverse, this decision can be reversed. So let us evaluate this. 9C5 is same as 9C4, so 9 into 8 into 7 into 6, नीचे आएगा 4 3 2 1. then 9C6 is same as 9C3, so 9 8 7, और नीचे आएगा 3 2 1. 9C7 का इक्विवेलेंट होता है 9C2, so 9 into 8 2 into 1. 9C8 का equivalent will be 9C1. 9C1 होता है 9 and 9C9 is 1. So let us evaluate this. 3 into 2 6, ये गया. 4 1s are 4 2s are 9 2s are 18. 18 into 7. 18 into 7 is 126 plus 3 1s are 3 3s are 2 1s are 2 4s are 12 7s are is 84. then 2 1s are 2 4s are 9 4s are is 36 plus 9 plus 1. तो ये देखते हैं 126 plus 84 plus 36 plus 10. so आंसर आता है 256, which is option A. 5 bulbs of which 3 are defective
are to be tried in 2 bulb points in a dark room. तो 5 बल्ब्स है, इसमें से 3 बल्ब्स डिफेक्टिव है, तो 2 होंगे हमारे नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। अब पूछा गया नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द रूम विल बी लाइटेड इज। अब रूम लिट होने की अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। एक है अगर एक बल्ब ग्लो हुआ, अगर एक बल्ब ग्लो होता है देन ऑल्सो द रूम इज लिट, और अगर दोनों के दोनों बल्ब्स ग्लो हुए देन ऑल्सो द रूम इज लिट। तो यहाँ पे फॉर वन बल्ब ग्लोइंग, एक बल्ब आएगा हमारा डिफेक्टिव में से और एक होगा हमारा नॉन डिफेक्टिव में से, दैट इज 3C1 एंड 2C1। तो एक बल्ब अगर डिफेक्टिव हुआ और एक नॉन डिफेक्टिव हुआ, स्टिल देयर विल बी लाइट। और दोनों के दोनों बल्ब्स अगर ग्लो होने हैं, यानी वो दोनों बल्ब्स होने चाहिए हमारे नॉन डिफेक्टिव, देन द 2 बल्ब्स विल बी glowing and there will be light. So 2C2. अब 3C1 is 3 into 2 plus 2C2 होता है 1. So 3 2s are, that is 6 plus 1. तो आंसर आता है 7, which is option D. So remember यहाँ पे लाइट होना, यानी उन्होंने बल्ब्स नहीं स्पेसिफाई किए हैं। तो अगर एक बल्ब भी ग्लो हुआ देन ऑल्सो देयर विल बी लाइट, और अगर दोनों के दोनों बल्ब्स ग्लो हुए तब भी रूम विल बी लाइटेड। सो अगर एक बल्ब ग्लो हुआ, यानी एक बल्ब हमने जो सिलेक्ट किया वो डिफेक्टिव होगा और एक होगा नॉन डिफेक्टिव, एंड दोनों बल्ब्स अगर ग्लो हो रहे हैं मतलब दोनों के दोनों बल्ब्स हमने कौन से सिलेक्ट किए हैं, नॉन डिफेक्टिव। सो 3C1 into 2C1 और 2C2. So the final answer is 7, which is option D.